Hello friends, I am starting a new series of what happens after a nuclear blast. This will be a educative series as well as a survival series. What kind of precautions and what kind of medications you have to take after or before a nuclear blast. Let me understand you a very simple thing that nuclear bombs or nuclear explosions are not a kind of thing which we should always encourage. What kind of effects can happen? Let's take an example. If there is a nuclear blast, within 24 hours, what will happen with you and what can happen with your loved ones? The initial blast will be a dose of radiation. It will be smaller particles, finer particles of radiation which cannot be seen by naked eyes. But it may harm your internal respiratory system, your respiratory tract, your gastrointestinal infection, and can rise to a higher and lower radiation. It depends on the radiation, the dose of radiation, which actually affects your thyroid gland. Thyroid gland is the major gland which helps to control the entire body glands. Then there is an ARS, that is known as acute radiation syndrome. Acute radiation syndrome is a kind of syndrome in which you will feel immediate nausea within minutes of radiation. Immediate nausea with severe diarrhea. That can be both at a time also. A person can feel nausea as well as diarrhea, both. That leads to dehydration. Then within seconds of explosion, whatever person, whoever may be in the immediate blast site or within 1 kilometer will be evaporated. Means a person, a human, within seconds it will be evaporated, and there will be a generation of severe shock waves which can perish the most advanced and strongest buildings which you have made. So there will be no shelters. So you have to take the shelters in case of a nuclear explosion or in case of a nuclear attack. You need to take some precautions regarding your body as well as your life. There will be severe shock waves up to 10 kilometers. So be ready for facing a severe earthquake also. In next series, we are going to discuss further. Thank you. सभी भाई बहनों को नमस्कार है मेरा। मैं आज आपको एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं ये बताऊंगा कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है आपके साथ और उससे आपको सावधानी क्या रखनी है। ये एक एजुकेशनल सीरीज है जिसको आपको समझ में आएगा अच्छे से कि क्या होता है और न्यूक्लियर बॉम्ब्स कोई मजाक नहीं है। पहली बात, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो पहले 24 घंटे में आपके साथ क्या होता है। सबसे पहले जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पे आप सबसे ज्यादा रेडिएशन ले सकते हैं, तो विद इन 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर या मैक्सिमम 3 किलोमीटर में कुछ भी चीज रहेगी वो इवेपोरेट हो जाएगी। इवेपोरेट यानी भाप में परिवर्तित हो जाएगी। अगर इंसान खड़ा है तो वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। रेडिएशन स्मॉल से लेकर हाई डोजेज में आपको मिलेगी। ये आपको अगले 10 किलोमीटर तक आपको झेलना पड़ेगा। ये रेडिएशन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आपके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट कर सकती है। थायराइड ग्लैंड जो कि बॉडी के मेजर फंक्शंस को रेगुलेट करता है, अगर इसमें रेडिएशन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो आपको सीवियर यानी जिसे हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है और आपको एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम होगा जिसमें आपको सीवियर डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन, सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग जिसे हम नॉशिया कहते हैं, ये विद इन मिनट्स स्टार्ट हो सकती है। यानी एक साथ आप उल्टी भी कर रहे हैं और एक साथ आपको लूज मोशन यानी डायरिया भी लगा हुआ है। एक सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा जो कि आपको आधा तो डिहाइड्रेशन से मार देगा, क्योंकि आपको पानी उस समय अगर आप कहीं से ढूंढेंगे भी तो वो कंटेमिनेटेड रहेगा रेडिएशन के द्वारा। फिर बात आती है यहाँ पर विद इन सेकेंड्स जब एक्सप्लोजन होता है तो शॉक वेव्स इमर्ज होती है। ये शॉक वेव्स जो है ये 1 से 3 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक महसूस की जाती है। यानी आपको ये तैयार रहना चाहिए कि आप एक बहुत बड़ा भूकंप भी साथ में इसके झेलेंगे। आप एक ऐसी कैटास्ट्रॉफी के बीच में रहेंगे जिसमें ना आप भाग सकते हैं ना तरीके से छुप सकते हैं। प्यास लगती है तो आप कहीं भी दुकान में जाके पानी भी नहीं पी सकते। आपको अगर भूख लगती है तो आप कुछ खा भी नहीं सकते। ये एक ऐसी सिचुएशन रहेगी जिसमें इंसान जिंदा तो है मगर वो रेडिएशन को झेल रहा है, रेडिएशन को खा रहा है। कभी कभी कई देश बोलते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम फोड़ देंगे। वो मजाक नहीं है। अगर आप अपने लोगों से प्यार करते हैं और मानव जाति से प्यार करते हैं तो आप समझ सकते हैं इसका क्या इफेक्ट होगा। अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके और क्या इफेक्ट्स होते हैं। देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।